काफ़ी लोगों ने ये पूछा भी होगा आपसे और काफ़ी लोग जानना चाहते हैं और स्पेशली सिंगर्स कि आप अपनी वॉइस को ट्रेन कैसे करती है, व्हाट डू यू डू, रियाज करती है, कोई स्पेशल टेक्निक्स हैं, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू डू? So people always feel that रियाज यू पिक्चर कि कोई बैठा है तानपुरा चल रहा है और ताने हो रहे हैं. That's the picture of Riyaz, but that's not what it is. It is a part of it, but not everything. Because you sing with your mind, you sing with your brain, with your ears, with your eyes, with your nose, your throat, everything, your lungs. It's everything. And I think ये जाकिर भाई ने एक बार कही थी कि रियाज पहले सुनो और दिमाग को ट्रेन करो है, तब वो ट्रांसलेट होता है. इन हिज केस प्लेइंग तबला फॉर मी वोकली. सो फॉर मी इफ आई हैव टू लर्न समथिंग, आई लिसन टू इट फॉर डेज, फॉर वीक्स, फॉर मंथ्स समटाइम्स. एंड people go to gym so they'll understand this better. So you go to the gym, you have a target कि I need to be fit or I need to lose this weight or whatever the case is. So I have to lose 10 kilos. The first day you go to the gym and come back, obviously there's no change. The next week, the next month, you see some difference. But why are you still going to the gym? Because you have that belief कि हाँ, अगर मैं ये रोज करूँ तो वो achievable है. Correct. In the same way, Riyaz is like that climbing the mountain. It's not going to show results that same day or the next day or the next week. But वो belief ज़रूरी है कि हाँ, आप बैठ के जो इसको करना चाहते हैं, one day it will show. So it has to be twofold. You have to first do Riyaz in your mind, understand what you're doing, and then execute it. So it's always 95% listening and 5% singing. तो आपने बोला कि कंसिस्टेंसी is very important. और बिलीफ बहुत इम्पोर्टेंट है. Yes. और लेकिन रियाज मतलब सवाल ये था कि रियाज करते कैसे, मतलब आप कैसे करते हो? क्या कोई स्पेसिफिक टेक्निक है या सा पकड़ के रियाज करते हो, जनरली रोज रियाज करते हो? क्योंकि बहुत लोग 5 मिनट रियाज करते हैं, बहुत लोग रियाज करते ही नहीं है, बहुत लोग 2 घंटे रियाज करते हैं. जैसे अरिजीत आए थे, उन्होंने बोला था कि उन्होंने अपनी वॉइस को स्कल्प्ट किया है एंड हिज वॉइस डिडंट यूज्ड टू बी लाइक दिस. आपकी वॉइस बहुत यूनिक है. अगर शिल्पा राव की आवाज़ सुनो तो समझ में आता है कि शिल्पा राव की आवाज़ है ना. इट स्टैंड्स आउट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड. Standing out of the class most of the time. I'm loving it. But yeah, when I met हरी जी ना, मुझे हमेशा लगता था कि गाना तो सीख रहे हैं, बट मुझे हमेशा लगता था कि हरी जी की आवाज़ इतनी यूनिक है ना. And I used to feel very disappointed with myself. Like, no one talks about my voice because obviously there's nothing unique about it. So I used to come back home and I used to copy male voices. Before Dad used to come from office, रियाज के पहले. So I used to try and do that. क्योंकि आवाज़ ऐसी नहीं थी पहले. करेक्ट. बिल्कुल नहीं. So आप ये बोल रहे हो कि आपने बहुत सारे मेल सिंगर्स की वॉइस को कॉपी करके गाने की कोशिश की, तब आपकी आवाज़ चेंज हुई? वो प्लस तो बहुत सारे सिंगर्स हैं. फॉर एग्जाम्पल शाडे, जब आप उनको सुनेंगे ना, ऐसा लगेगा कि दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी साउंड्स दैट शी इज पुटिंग टुगेदर टू क्रिएट दैट वन लाइन. I used to find it very intriguing. I used to hear her. Or if I listen to Sting, you know, I would feel okay. And I would try to emulate it. ऐसे भी हमारी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक गुरुमुखी विद्या है. तो आप गुरु से जब सीखते हैं, you emulate it. उसके बाद फिर आप उसको अपना बनाते हैं. तो किसी चीज़ को exactly emulate करना is the first step. But again, you have to make it your own. So, thankfully, high school, you're not doing much in life any which way. So, I had a lot of time to just practice and try and make a tone. It is not
it's a very big misconception कि people are born with voices. ऐसा नहीं है. And उसी को रियाज बोलते हैं. To create a wholesome way of singing. It's not just technique. It's also aesthetic. Aesthetic is a very, very important part of your music. Aesthetics आते हैं आपके music influences से आते हैं. Attention to detail से आता है. फिर aesthetic comes from what you intend to do. हर जगह मुर्की करना ज़रूरी नहीं है. True. और हर जगह मुर्की से गाना अच्छा नहीं होता है. Correct. There are many aspects of singing. For example, meend is a very beautiful aspect of singing. Gamak, sapat, khatka. These are very, very important tools that you can use to create. हमें थोड़ा समझा सकते हो आप? If it is comfortable. For example, खटका is नशा चढ़ा जो शरीफी का शरे. That drop is actually a खटका. ये मुर्की नहीं है. और for example, न जाने ये ज़माना. This is a meend. क्यों चाहे रे मिटाना, न चाहे मिटाना. So this is called, like, if, I mean, you talk to someone and someone's stuck on that one word, na? Oh, it's fabulous, it's fabulous, it's fabulous. It's amazing, it's amazing. Then that's the only one word you will use. But there are many things that you can True. use to describe something. So this is vocabulary, music vocabulary as a vocalist. तो अगर आप सिर्फ मुर्की पे ध्यान देंगे तो आपका गाना भी सिर्फ मुर्की बेस्ड ही होगा. बट अगर ये सारी एस्पेक्ट्स आप धीरे धीरे सीखना शुरू करेंगे and if you start working on it, your vocals will have the range of so many things that you can do, because you'll be expressing it differently. True. So उससे आपके गाने में एक अलग फिनेस आता है. So रियाज इसीलिए करते हैं हम लोग. एक्चुअली आपने ये जो दोनों चीज़ें अभी करके दिखाई ना, मेरे लिए, मैं इतने सालों से सिंगर्स के साथ हूँ, बट समझ में आना बहुत मुश्किल होता है कभी कभी. आपने बहुत सिंप्लीफाई करके समझाया है, तो उससे ये भी समझ में आया कि द मोर इफ़ यू यूज़ योर वॉइस एज एन इंस्ट्रूमेंट, और आप अपनी म्यूज़िक वोकेबुलरी जो आपने वर्ड यूज़ किया, कि उसको आप जितने वोकेबुलरी में जितने ज़्यादा शब्द होंगे उतनी अच्छी आप भाषा में बात कर पाओगे. वैसे ही अगर आपके म्यूज़िक वोकेबुलरी में जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग होगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा चीज़ें आप जानते हो, और उसके बाद में फिर वो चीज़ें सही जगह पे सही चीज़ यूज़ करना भी आना पड़ेगा. दैट चॉइस इज हैज़ ऑल्सो बी डन राइट. जैसे आपने बोला कि हर जगह सेम चीज़ यूज़ नहीं कर सकते आप. करेक्ट. देन वो बहुत मोनोटोनस हो जाएगा. करेक्ट. क्योंकि एक और भी बात है, आप जिनके साथ काम करते हैं वो अलग अलग गाने भी तो बन रहे हैं ना. इट्स नॉट दैट म्यूजिक इज चेंजिंग एवरी 3-4 months. सो यू कीप डूइंग न्यू थिंग्स.